recording. Okay, you can hear my voice clearly. How are you all doing? Yes? If anyone is trying to speak, volume is full. I will just open my attendance sheet first क्योंकि वो पहले सबसे ज़्यादा important है. Otherwise then miss out हो जाएगा. 18, 20, 22. Okay. Shravani is here. Just tell me yes or no because I'm on the sheet. So मुझे वो Zoom का नहीं पता. Zoom खुला हुआ नहीं. बस नींद बहुत ही ज़्यादा. अच्छा नींद. इतनी गर्मी में नींद कैसे आ सकती है अमन? मुझे तो बहुत मुश्किल होती है नींद आने के लिए. श्रावणी इज हियर. नो. श्रेया पाटिल इज हियर. नो. गंगा सागर तो नहीं. आसिफ इज हियर. ओके. खाली मुझे यस बोलो ना. मैं नाम बोलती हूँ तो मुझे यस बोल दो ना या प्रेजेंट. ओके. अमन इज हियर. ओके. साक्षी इज हियर. नो. अच्छा साक्षी इज हियर. साक्षी माने. हाँ साक्षी माने इज हियर. Mamta Yadav is also here. Okay, Khushi, no. Kusum Yadav, yes, Kusum is also here. Please just give a confirmation by saying yes quickly. Nidhi, Vishnu, Muskan, Pranjal. Yes, Didi, I'm here. Pathan. I am not able to see anything on your Zoom, so please don't message for a minute. Just tell me yes or no. I am on the attendance sheet. एक मिनट. सोनी, यश, मिसबा, श्रेया पाठक. श्रेया पाठक is here? Yes. है ना? हाँ श्रेया पाठक है. ठीक है. Just give me a second. Yeah, I'm also. हाँ आपका माफ हो गया अमन. Okay. Okay. So all of you are here. I hope everyone is doing good and I hope everyone has gone through the recording which I have shared. Okay, Misbah is new to the class, I think. So I'm going to share an exit. I'm going to share a Google form. उसमें आपको flower का diagram दिखेगा. And what you're going to do is you're going to see the label. Numbering is given 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा numbering दिया हुआ है. And you have questions. Question number 1 2 3. तो 1 कौन सा label है that you have to put. 2 कौन सा है, 3 कौन सा है. Okay, because this is really just one last one. मतलब hi Misbah. Misbah, you're new. I mean you have recently joined. I'll just put present. Hi. Okay, what do you mean by one last बचा हुआ है? Come on, let's see if you can do this. So I'm putting this link in the chat box. I don't know then Aman, everything is planned. See, मैं live class के लिए आऊँगी तो मैं plan करके आऊँगी कि पिछले 3 recording मैंने जो आपके साथ share की है उसमें कौन से topics cover हुए हैं. फिर वो topics से related assessment I will plan and come that you will be doing in live class. And then
We will have half an hour, or depending upon how many doubts you have, how many questions you have, that we are going to solve, that we are going to discuss. If you're going, if this is going to be the trend, then I don't know how things will work. The instructions were given to you very, very clearly. ज़्यादा बड़ी recording भी नहीं थी, 20 minutes की तीन ही थी, and you had 8 days. 8 days is 24 into 8, how much it gives you? इतने सारे घंटे थे आपके पास, उसमें से आप अगर 1.5 घंटे ही निकालते, पूरे हफ्ते में से 1.5 घंटे तो 3 रिकॉर्डिंग हो जाती है आपकी. Okay, anyway, now what you are going to do is, at least something you will be remembering from the discussion. So you can click onto the link. I will see how many of you are there on this form, and those who are not there, so please, I will come to know how many of you are there on this Google form, because once you put the submit button, तो मैं फिर सबका नाम, I will be able to make it out. Okay, just have a look. अभी क्या करो, अभी solve मत करो. Just have a look what is there in this form. What we will do is, we will first discuss. I will share the textbook with you, and we will discuss. We will just quickly recap the different parts of the flower, and then we can just chemistry का link है? Oh, I'm so sorry. Sorry. So sorry. This is sheet हो गया. Forget about that. ये वाला link. अभी इसको क्लिक करके जरा देखो. What do you see in this Google form? मुझे खाली बता दो. Can you see a flower diagram? And you can see options over there. Yeah. Yes. Abhi don't fill it right now. Let me just share my screen. We'll just quickly recap the important part. Let me just load the textbook. Okay. Those of you, I mean, you went through the videos. Did you face any difficulty, any topic you did not understood? Yeah, so we can do that. Can you see my screen? All of you, can you see my screen? Yes, miss. Yes? Okay. Okay, Pranjal is saying Pranjal has understood. I'm assuming that almost कम आ रही है? Is it only for Vishnu और सबके लिए कम आ रही है? Okay. So Pranjal is saying that she has understood almost everything. What about others? What about others? All of you are from this Maharashtra board, right? Only Muskan Yes. Shah was there from CBSE, so she is not here today. So that is why this textbook will work. Okay, no problem. Okay, Sakshi is also saying understood. Okay, so in the 3 videos that I shared with you, there was discussion regarding asexual reproduction. Okay. Before that, I also gave you a general understanding about reproduction क्या है, fertilization क्या है. आप लोगों ने स्कूल में भी वो पढ़ा होगा, तो एक तरीके का रिवीजन भी हो गया, right? So asexual reproduction is without any parent. I mean, no 2 parents are involved. Only 1 parent is involved. Yes, and the
offspring or the progeny or the newborn or the living individual that is produced, okay, is very similar, is exactly similar, is morphologically, structure wise also and genetic wise also वो एकदम similar होता है अपने parents को, इसलिए उसको हम clones भी बुलाते हैं. Okay, आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा clones, ये word you might have come across, right? तो they are known as clones when we are talking about asexual reproduction. तो जो भी young ones होंगे उनको हम clones भी बुला सकते हैं because वो एकदम अपने पेरेंट्स को सिमिलर होते हैं. There are various types in it. Okay, in the video I had included more types so that आपका कहीं और मिस ना हो. I mean थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप अगर पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी उसमें कवर हो रहा है. तो in your Maharashtra का टेक्स्ट बुक only 3 has been focused: fragmentation, budding and spore formation, which I have detailedly explained in the video. Fragmentation wherein अगर एक टुकड़ा आप काटो, so that fragment is capable of growing into a whole new organism, just like yeast. Okay, yeast कैसे grow करते हैं? Multiple organisms can break into fragments due to one or other reasons. Spirogyra है, sorry, not yeast. I'm so sorry. The diagram was just there. Budding we discussed with respect to yeast. Fragmentation के अंदर we can have Spirogyra, we can have Planaria also. Yes, wherein you let's say you take a Spirogyra ka filament and you make pieces out of it, and these individual pieces are capable of growing into a whole new organism. ठीक है ना? तो ये क्या है? एक छोटे फ्रैगमेंट से बड़ा फ्रैगमेंट बन रहा है, तो वन पेरेंट से the new individual can be formed or can be developed. Fragmentation. And budding is like a bud will come out from the parent plant, then this bud will grow like a parent, फिर उसमें से एक bud निकलेगा, that will grow out like the parent. So this is how the budding will erupt from the parent plant. When they are matured and when they are fully developed, they will detach from the parent body, then they will start reproducing, and that is how the chain of buds will be formed. Okay, this is also what involving only one parent. तो budding में था वीडियो में डिटेल डिस्कशन. स्पोर फॉर्मेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स है. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ क्लामाइडोमोनास का एक फोटो दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स है. आप गूगल करोगे, इफ यू आर you might have other resources also. You have fungus which reproduce by spores, but then उसमें asexual भी है, sexual भी है. Remember 11th में हमने बहुत ही डिटेल में किया था the whole kingdom of fungi, and then fungus can show asexual reproduction also, and then they can show sexual reproduction also. And वो कैसे reproduce करते हैं? वो बारीक बारीक spores, granular spores निकलते हैं, and फिर वो spores spread out होते हैं environment पे, then they go and attach to some food source, to some substratum, फिर वहाँ से they start growing. हाँ, so यहाँ पे spore formation में Chlamydomonas का example दिया गया है. It is also growing asexually. So you have the parent body, parent cell के अंदर पहले छोटे छोटे spores, zoospores बुलाएंगे in this case, वो develop होते हैं. When they start getting bigger, when they start maturing, फिर वो burst, बहुत सारे zoospores हो जाते हैं parent cell के अंदर. तो अब वो ready है to burst open and spread out in the environment. So this is how they will carry out reproduction by asexual reproduction. Then other methods which were there in the video that I mentioned were binary fission, conidia, gemule formation by sponges. ये सब हमने है ना 11th में cover किया, और 12th में आप देखोगे तो इसका कुछ है नहीं. It's just one line present over here, just for MCQ में कभी आ गया या film line में आ गया. That's it. No detailing is here, is there in your 12th standard, because everything is covered in 11th. सही है? Okay. Then the video also, next video consisted about the vegetative reproduction. Vegetative reproduction भी क्या है? एक तरीके का sexual reproduction है. हाँ या ना? क्यों sexual reproduction है? Sorry, sexually, I'm so sorry. Asexual reproduction है. Why? Because there is involvement of only the parent body, right? Only the parent body is there. ठीक है ना? So mostly when we are talking about vegetation, so what are we talking about? We're talking about plants, है ना?
So plants will carry out asexual reproduction. Yes, more, I mean, almost all plants will carry out. When we are talking about the plant giving rise to the new one, let's say if you take a potato eye and sow it into the soil, it will grow into a whole new plant. A potato plant only, it will not give rise to another plant. Tomato plant नहीं grow होगा. ठीक है, अगर आप कोई शुगर केन का नोड या इंटरनोड इतना से नोड कट करके सॉइल में सो करोगे तो शुगर केन प्लांट विल कम आउट. Some other plant will not come out. So vegetative reproduction, when you are taking a part of a plant and growing that part of the plant, trying to grow that into a whole new plant, then that category is all asexual. Plants also show sexual reproduction. Make this very clear, because in the next, this whole chapter is what? Reproduction in plants. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में तो दो टाइप की रिप्रोडक्शन हो गए, सेक्सुअल भी हो गया, एसेक्सुअल भी हो गया. शुरू का चैप्टर ये इतना, बस यहाँ तक एसेक्सुअल है. इसके बाद हमें सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है. ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं अभी तो हमने बोला कि प्लांट्स तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते. पहली लाइन बता रही है, ये पहली लाइन बता रही है ना, प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स. बट ये पूरा सेंटेंस रीड करो. दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली when we are considering their vegetative parts. When we are considering their vegetative parts, when you are taking any part of the plant and you are sowing it into the soil, आप जमीन में उसको डाल रहे हो, then it will grow into a plant. Okay, with that part only. तभी फिर sexual reproduction, fertilization, egg, female gamete, male gamete, pollen grains, flower, वो सब picture में नहीं आता है. Making sense, guys? Or I'm just talking to the screen, and though there are 13 participants, but I'm not able to make out whether you are absorbing what I'm trying to say. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं समझना है कि प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे, सिर्फ उनकी खेती जो होती है आप सीड डाल दोगे और प्लांट आ जाता है तो ये सारे एसेक्सुअल नहीं. प्लांट्स ऑल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा मेजर पार्ट है चैप्टर का, जो हम डिस्कस करेंगे एज एंड व्हेन आई शेयर वीडियोस विद यू. ठीक है, तो जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें था स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो, या vegetative propagation also. Okay, yes, no, only vegetative plants are asexual. तो ये sentence थोड़ा से सही नहीं है कुसुम. अगर मैं ऐसा बोलूं only vegetative plants are asexual, क्यों? अगर suppose I tell you, let's say एक plant मैं बोल दूं rose plant for example, नहीं rose नहीं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पपाया. ठीक है, अभी पपाया प्लांट है. पपाया प्लांट इज ग्रोइंग बाय, इट हैज फर्टिलाइज्ड, आई मीन मेल पपाया प्लांट और फीमेल पपाया प्लांट दोनों का फ्लावर pollination happened, and then the papaya seed was there, and then the seed the flower turned into the seed, and then the fruit was there. तो वो फ्रूट बन गया. तो अब ये फ्रूट को आप बोलोगे क्या अभी फ्रूट है तो वो पूरे प्लांट पे फ्रूट आएगा ना. The plant will be there and the fruit has been developed. The fruit has come out as a result of sexual reproduction. ठीक है, so the plant is having different vegetative parts. Vegetative part means what? अगर मैं vegetative parts बोलूं तो vegetative parts में क्या आ गया? Root, stem, branches, branches के ऊपर लीफ, ब्रांचेस के ऊपर लीफ है, बर्ड्स है ना, बर्ड्स होते हैं. ठीक है, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, नोड्स, इंटरनोड्स हो गए, टर्मिनल, अपेक्स and these terminal places, root and root hairs. What are these? These are all vegetative parts of the plant. Fine. अभी अगर यही प्लांट के ऊपर टमेटो लग जाएगा, टमेटो अगर लेट्स से ये टमेटो ग्रो हो रहा है इसके ऊपर, तो टमेटो इज व्हाट? इट्स अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर.
but there are many vegetables, many fruits out there in the nature which grow, which are as a result of sexual reproduction. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे plants can reproduce asexually when we take their vegetative parts. There is a possibility to grow a whole new plant when we just take a simple part of the plant. Let's say आपने ये टमाटो का प्लांट है, इसका आपने सिर्फ let's say बड ले लिया या आपने लेट्स से रूट ले लिया या स्टेम ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसको आपने पॉट में लगा दिया ग्रो होने के लिए, तो वो धीरे धीरे सैपलिंग में बदलेगा, फिर सैपलिंग एक हाइट की हो जाएगी तो आप उसको पॉट में से निकाल के फील्ड में डालोगे. ओके, तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्या क्या इसमें चीजें आती है, वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे वी मूव फॉरवर्ड. सो आज के लाइव क्लास के बाद मैं आपके साथ अगेन 3 वीडियो शेयर करूंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. देन ये हो गया था ना, हाँ मैंने शेयर कर चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और मैंने यहाँ तक शेयर किया था आपके साथ कि फ्लावर इज द पार्ट is the organ which carries out sexual reproduction. उसके बाद फिर डिटेल जो आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे वो जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास के बाद मैं 3 रिकॉर्डिंग फिर से शेयर करूंगी, so that you will from there you will understand okay first step, second step, third step. बहुत ही लंबी कहानी है, the chapter is very comprehensive, काफी सारा है इसके अंदर और बहुत ही important चैप्टर भी है. इसमें से कोई भी पार्ट आप इसको ऑप्शन में मत छोड़ना. ऑप्शन में समझ में आ रहा है कि चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ूंगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए ये दिल नहीं कर रहा या मेरे को कुछ अच्छा मन पसंद नहीं है टॉपिक, तो इसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, योर में अच्छा खासा मार्क्स इसके ऊपर डेडिकेटेड है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और इसके बाद वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, so vegetative reproduction can be done by cutting, can be done by grafting, can be done by tissue culture also. All of this is there in the video in detailed explanation. You might have gone through it. If you have any doubt, this is the time, this is the point where you can ask me. Okay, I will wait for 30 seconds. अगर आपको doubt है, कुछ क्लैरिटी करना है तो आप अभी पूछो, वरना मैं एक वापस से अगेन आई विल जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स एंड देन वी विल डू द सॉल्विंग पार्ट, दैट इज द फ्लावर दैट यू सॉ इन द एग्जिट क्विज. वेटिंग फॉर 30 seconds एंड देन आई विल जस्ट कंप्लीट द रिविजन. एक रिकैप मैं कंप्लीट कर दूंगी यहाँ तक का एंड देन आई विल स्टॉप. ओके, अभी आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा. हाँ बोलो अमन, बोलो. From my side, it's clear today. You meant you have no questions, right? Yes. Thank you Aman for letting me know. Anyone else? देखो, this is also a very good practice. Like how he unmuted and he said कि दीदी मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर if all of us can put this into practice, it's not necessary that all of you unmute and tell that कि मेरे को कोई नहीं है. आप chat box में लिख दो ना, no questions from my side. So it's a very good practice. It is very, it's a good gesture that you show to the speaker. So हाँ, टिश्यू कल्चर में बता एक रिकैप कर लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम. नहीं, कुसुम आपने वीडियो देखा? Okay. Revise. I will do the revise. The videos that I shared in the group, because now everything is going to be recorded and live session में हम अपने doubts करेंगे. आज first live session है तो इसलिए मैं recap दे रही हूँ आपको. Possibly जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो recap देना इतना आसान नहीं होगा, because बहुत सारी चीजें मुझे करनी होगी live class में. Making sense?
ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा अभी हम स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो मैं एक रिकैप दे रही हूँ, तो थोड़ा आप भी एक एक हैबिट हो जाए कि हमको वीडियो देखकर ही आना होगा। अगर नहीं देख कर आएंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी, फिर हम क्या करेंगे, मतलब फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बैठ के सिर्फ मक्खियां ही मारेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक खोला है। 1 से 2 बार और हम रिवीजन कर सकते हैं, 1-2 लाइव क्लास तक का, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे पोर्शन बढ़ता जाएगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। ओके, सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट all your biology live class will begin from recap, because फिर recap देने को भी पूरे हफ्ते में 3 वीडियो आपने देखा है जो स्पेसिफिक टॉपिक है, तो 1 घंटे में वो recap अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, your recap will your live class mostly will consist on questions that you will come। अभी जैसे कुसुम ने पूछा टिश्यू कल्चर क्या है, तो अभी मैं टिश्यू कल्चर एक्सप्लेन करूंगी, और साक्षी ने पूछा कि एक बार आप रिवाइज कर दो टिश्यू कल्चर, तो वो मैं भी तो वो अच्छा लगता है कि हाँ आपने देखा है, आपको डाउट है, तो वो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। लेकिन फिर पूरा A to Z हर बार पॉसिबल नहीं होगा। जस्ट टू लेट यू नो, उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये टीचर तो कुछ भी नहीं बताएगी लाइव क्लास में आने से, ऐसा नहीं है। जस्ट टू कीप यू ऑन द सेफर साइड, टू मेक यू इंडिपेंडेंट लर्नर्स, टू मेक यू सेल्फ लर्नर्स। अभी आप देखो 12th में गए हो, आपको आइडिया हो गया होगा 11 से ही कि स्कूल में कैसे हर चीज के लिए टीचर्स आपके पीछे होती थी, असाइनमेंट दे दो, बुक दे दो, ऐसे बुक सबमिट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आपका ये रोल नंबर ये इधर है उधर है। बट आप जब कॉलेज में गए तो कोई भी नहीं था आपके पीछे, आपने दिया आपको मार्क्स मिला, नहीं दिया तो आपके मार्क्स गए। 12th में और ऐसा होगा, नो वन इज गोइंग टू बी बिहाइंड यू, एंड वंस यू गो इनटू डिग्री कॉलेज आफ्टर योर 12th, whether you're going into an engineering college or a medical college or any degree college, no one will be there to guide you, or no teacher will tell you कि ये मैंने आज जो पढ़ाया है वो ये नोट्स में है या वो नोट्स में। they will just tell you the book का नाम and author का नाम, go find the book, go find it in the library, fetch it for yourself, fetch the topics that were discussed, और फिर खुद अपना नोट्स बनाओ, खुद के क्वेश्चंस बनाओ, खुद के आंसर बनाओ। नो वन विल गिव यू एनीथिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे हम यंगर एज में है, हम ये सब प्रैक्टिस लाएंगे ना, इट विल बिकम इजियर एंड इजियर। फिर एकदम से शॉक और सरप्राइज नहीं होगा जैसे हम 6-10 महीने के बाद जब हम डिग्री कॉलेज में जाएंगे तब। ओके, तो कटिंग इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बटाटे आलू होते हैं, आलू की जो आंखें आती है, खेतों में कैसे लगाते हैं आलू, उसकी आंख काट देते हैं और लगा अगर खेत में डाल दिए सॉइल के अंदर, तो वो आंख से पूरा आलू का प्लांट आ जाता है, पोटैटो का प्लांट आ जाता है ना। सिमिलरली रोज को भी अगर आप खाली स्टेम कट कर दो, उसका एक स्टेम कट करके उसको सो कर दो, इट इज केपेबल इनटू ग्रोइंग इनटू अ होल न्यू प्लांट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। किसी का पत्ता काट के सो कर दो, लीफ, खाली लीफ, तो वो लीफ से पूरा प्लांट आ जाएगा। किसी का रूट काट लो, जैसे कि ब्लैकबेरी का, एक रूट काट के आप सॉइल में डाल दो तो पूरा एक प्लांट बन जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे कटिंग। स्मॉल पीस वेजिटेटिव पार्ट का आप ले लो, कोई भी प्लांट, कोई भी पार्ट ले लो, रूट ले लो, लीफ ले लो, स्टेम ले लो, बड ले लो, ओके, एंड देन यू यूज इट फॉर प्रोपगेशन। फिर वो उतने पार्ट से पूरा प्लांट धीरे धीरे बनेगा। देन यू कैन डू ग्राफ्टिंग ऑल्सो। ग्राफ्टिंग में क्या है, 2 अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग प्लांट्स के आप ले सकते हो। ओके, ये why you want to do this, when you want to see characteristics of both the plants in your new plant. Okay, when you want to see characteristics of both the plants into your new plant, आपको प्लांट A का कैरेक्टर 1 फर्स्ट चाहिए और प्लांट B का कैरेक्टर 2। लेट्स से कैरेक्टर A यहाँ पे है, दिस प्लांट इज डिजीज रेजिस्टेंट, this plant is giving high fruit quality। तो मुझे दोनों क्वालिटी अपने प्लांट में चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी चाहिए कि भाई वो प्लांट को जल्दी बीमारी नहीं लगनी चाहिए, वो सड़ना नहीं चाहिए, उसको वायरस बैक्टीरियल अटैक नहीं होना चाहिए, और मुझे हाई क्वालिटी फ्रूट वाला, मतलब हाई क्वालिटी फ्रूट, ये वाला कैरेक्टर भी अपने न्यू प्लांट में चाहिए। तो मैं दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कर सकती हूँ बाय डूइंग दिस प्रॉपर्टी, बाय डूइंग दिस नोन एज ग्राफ्टिंग। So 2 plants can be joined in such a way that they grow as one plant.
दो अलग अलग टुकड़े ले लो अलग अलग प्लांट के, उनको ज्वाइन कर लो, फिर वो एक ही प्लांट का हिस्सा ग्रो करने लगेंगे। ओके, सो दो पार्ट लोगे तो एक मिनट, आई जस्ट गो डाउन। हाँ, सो जिसका आप part of the stem containing more than one bud is your scion, which is joined to a root plant called stalk. तो ये root है और इसका एक छोटा से पार्ट है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, दूसरा पार्ट लगा रहे हो लाइक दिस। ओके, तो ये स्टॉक है, ये बेस है और इसके ऊपर एक छोटा से दूसरा पीस लगा रहे हो। ओके, दो चीज को जोड़ रहे हो और बांध दे रहे हो रस्सी से, किसी चीज से। इस रस्सी से बांधते हैं या फिर प्लास्टिक रैप भी करते हैं, प्लास्टिक रैप और किसी थ्रेड से बांध देते हैं कट लगाकर। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ग्राफ्टिंग। दिस इज आल्सो व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, asexual reproduction. Plants like apple, pear, rose, ऐसे सब plants by grafting they can be vegetatively propagated. ओके, टिश्यू कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी ये चैप्टर में टिश्यू कल्चर का एक छोटा सा खाली डेफिनेशन है, बट इन योर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टिश्यू कल्चर इन वेरी डिटेल। ओके, तो फिलहाल अभी जो छोटा सा डेफिनेशन है हम उस पर ही फोकस करेंगे, एंड व्हेन वी विल गो टू द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर तब हम डिटेल में करेंगे उसको टिश्यू कल्चर। ठीक है, अभी नाम देख लो, नाम ही इसका काम बताता है, टिश्यू कल्चर। कल्चर मीन्स व्हाट, यहाँ पर कल्चर से क्या आइडिया आता है आपको? मैंने आपको बताया था 11th में, अगर आप किसी को याद होगा तो। एक तो कल्चर ट्रेडिशन, वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कल्चर क्या समझ में आता है आप लोगों को? ओके, नर्चर एंड एनवायरनमेंट, गुड अटेम्प्ट, गुड। अदर्स? Lifestyle. क्या बोला आपने अमन? Lifestyle. ओके, come on, I want others also to speak. Speak नहीं तो कम से कम write. Very good शिफा, producing, very good. तो यहाँ पे जब हम साइंस स्पेशली बायो के कॉन्टेक्स्ट में कल्चर पढ़ते हैं तो कल्चर मीन्स कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ ग्रो करना। तो टिश्यू मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, है ना, having similar structure and similar function. When group of cells come together performing similar function तो हम उसको क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी प्लांट का टिश्यू ले सकते हो, वो टिश्यू को आप फिर ये लेकिन माइक्रो लेवल हो जाता है, आप डायरेक्ट टिश्यू लेके सॉइल में नहीं डाल सकते हो। वो टिश्यू को आप पहले लैब लेवल पे कल्टिवेट करोगे, इधर इन द पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब और अ फ्लास्क और अ बीकर व्हाटएवर। तो टिश्यू धीरे धीरे प्रोपगेट होगा, it will form a mass of cells, an organ, then different parts will come out and then small sapling will come out in the tissue or the beaker or the flask. फिर वो छोटी sapling जब ready हो जाएगी then you take it and sow into the soil. What have you done in this? No sexual reproduction, no male gamete, no female gamete, nothing, no fusion, no fertilization involved. You just took a part of the plant, but part मतलब बड़ा part नहीं, जैसे in case of cutting and grafting, you took a tissue. Tissue can be a thin slice of leaf. It can be a thin slice of root cells, a thin layer of stem cells. स्टेम के सेल्स है या बड के सेल्स है या ब्रांचेस के सेल्स है, एनीथिंग। ओके, सो फ्रॉम दैट टिश्यू लेवल यू कैन प्रोड्यूस अ होल न्यू प्लांट, हेंस इट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। मेकिंग सेंस? मेथड बाय व्हिच a small amount of the plant tissue is carefully grown
to give many plantlets. तो वो टिश्यू से आप बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो कर सकते हो, फिर वो प्लांटलेट्स को लेके जाके फील्ड में ग्रो करके यू कैन expand the growth of those plants. So micro propagation method is also used nowadays. तो छोटे से बहुत सारे सैपलिंग्स आपको मिल सकता है छोटे सैंपल से. क्लियर? जैसे भी कटिंग में आपको बहुत सारे, लेट्स से इफ यू टेक पोटैटो, तो बहुत सारे पोटैटो आपको लगेंगे ना, आंख वाले बहुत सारे पोटैटो लगेंगे, क्योंकि उनके सबके आईज काट के अगर 100 आलू उगाने हैं तो कम से कम उसके आधे ने तो 1/4 तो लगेंगे, है ना. कम से कम 20-25 तो लगेंगे आलू आंखों के साथ. तो उनके आप आईज कट करोगे और फिर 100 का प्लान करोगे कि वो उतने में ग्रो हो जाएंगे. बट टिश्यू कल्चर में ऐसा नहीं, बहुत ही छोटे सैंपल से बहुत सारा प्लांट्स आ सकता है, ग्रो हो सकता है. मेकिंग सेंस गाइस? Yes. All of you? What about others? Asif, Misbah, Pranjal, Sakshi, both the Shreya, Vishnu. ठीक है. And the last topic was about sexual reproduction. Last video जो third video था वो was talking about sexual reproduction. अभी sexual reproduction क्या है मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को सबको पता है. Like 2 2s are 4, 2 3s are 6. आप जैसे 2 और 2 के tables होते हैं, ABCD होता है, वो आपको ये पता होना चाहिए bio student को. Sexual reproduction. Last was about this and I stopped the video over here. अभी नेक्स्ट 3 वीडियोस में मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो मैं आज शेयर करूंगी. आपके पास 7 डेज है, आराम से देखो उसको, समझो क्या प्रॉब्लम है वो नोट डाउन करो और लाइव क्लास में नेक्स्ट वेडनेसडे को लेकर आना. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मैंने डिस्कस किया है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर है, यहाँ तक है 2 पेज. स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवरी, तो ये पूरा पेज है और ये वाला पूरा पेज है. ठीक है. तो 2 पेज को 3 रिकॉर्डिंग्स में स्प्लिट किया है. ये तीनों रिकॉर्डिंग्स आप नेक्स्ट वेडनेसडे तक का आओगे देखकर. इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दिस फर्स्ट दिस यहाँ से लेकर वो लास्ट लाइन तक का इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बनाने पूछते जबकि डायग्राम में कुछ भी नहीं, खाली गोल गोल बनाना है. ओके. ये टीएस ऑफ एंथर पूछते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज द पोलन ग्रेन. दिस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ये बनाने बोलते हैं एग्जाम में, लेबलिंग करने बोलते हैं, एक्सप्लेन करो. तो यहाँ तक का नेक्स्ट रिकॉर्डिंग तक दूंगी मैं आपको, यहाँ तक आपको करके आना है, देखकर आना है, समझ के आना है, अपना नोट्स बनाओ, याद करो. ठीक है. पेज नंबर 4 तक का, 2 and 4. चलो लेट्स जस्ट कंप्लीट दैट जो रिमेनिंग था हमारा. दीदी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएस? टीएस मींस ट्रांसवर्स सेक्शन. मैंने वीडियो में लिखा है, बताया है ट्रांसवर्स सेक्शन. आपने पता नहीं 11th में कभी किया है, आई डोंट नो. एलएस होता है, बीएस होता है और टीएस होता है. एलएस और टीएस ऑलमोस्ट सेम होता है. जैसे अभी ये लेट्स से स्टेम पे, ठीक है. अगर आप इसको बीच में से ऐसा काटोगे, ऐसा, तो वो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल सेक्शन. मतलब जैसे इमेजिन कर लो गन्ना है और गन्ने को आपने बीच में से फाड़ा है, तो वो वर्टिकल सेक्शन होगा. तो ऐसा फाड़ोगे तो कैसा दिखेगा? अगर आप ऐसा कट करोगे, ऐसा ऐसा, तो वो गोल गोल मतलब वो सर्कल में आ जाएगा ना. अगर आप ऐसा कट करोगे तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. क्या बोलोगे? एलएस एंड टीएस और मोरल. तो जब एंथर को आप ऐसा कट करोगे, एंथर है ना, ऐसा कुछ दिखता है. अच्छा ये अभी एंथर बोलोगे, तो ये एंथर है ना, कुछ ऐसा दिखता है. इसमें 4 लोब होते हैं. तो जब इसको ऐसा कट करोगे तो ये अंदर से कैसा दिखता है? तो इसके 4 लोब है. तो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक दिस. 4 lobes TS of anther. Everything is there in the video from start, basic point से लेके detail point तक का. So that you will come, that you will know when you see the video only after the live class in the remaining 5 days. Okay. Now the last part is that we'll just quickly recap is the flower. ठीक है.
आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ फ्लावर और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है. फ्लावर क्या करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? अभी हमने देखा ना. It give fruits. It gives fruit. Very good. The flowers are turned into fruit eventually. Very good. Excellent. What else? What is the another function of the flower? Very good. Excellent. Very good, Shifa. Very good, Shreya. It is the reproductive organs. It is having reproductive organs. Excellent. Shifa is also attract the insects. Very good. Generally, अगर मैं बोलूँ attracts the pollinators. Insects हो गए, birds हो गए, bees हो गए, honey bees हो गए, butterflies हो गए, जो भी pollination करेंगे. Pollination is a step for sexual reproduction. Very good. Excellent. That pollen grain goes in stem. Yes, very good, very good. ठीक है, तो flower is basically the organ of the whole plant. It's the organ of the whole plant which is responsible for carrying out sexual reproduction. ठीक है ना. रूट अभी हमने देखा ना, रूट है, स्टेम है, लीव्स, बड्स, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं. ओके, बट कहीं पे हमने फ्लावर देखा, फ्लावर डूइंग अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? नो. फ्लावर का मेन पर्पस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द फ्लावर कैन हैव both the reproductive organs. Both the reproductive organs मतलब दो ही reproductive organs हो सकते हैं ना, दो टाइप के, या तो मेल या तो फीमेल. सही है ना, मेल फीमेल. तो कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल पार्ट होता है, तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म ना, यूनिसेक्सुअल. हाँ या ना? Yes, जी. हाँ. तो यूनिसेक्सुअल मींस फ्लावर में सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल या तो फीमेल. अगर मैं बोलूं बाइसेक्सुअल, इससे क्या समझ में आएगा आप लोगों को? If I tell you bisexual. एक ही फ्लावर के प्लांट में दोनों ऑर्गन्स है. Very good, very good, good. Yes, Shreya, excellent. When both the reproductive organs, that is the male and the female, ये वाला female है, ये वाला male है. तो जब मेल और फीमेल दोनों हैं एक ही फ्लावर में, तो वैसे टाइप के फ्लावर को, वैसे टाइप के प्लांट को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट. पॉसिबल है ये एक्चुअली. तो मेल पार्ट विच इज द एंथर एंड द स्टिग्मा इज नोन एज, ये जो दिख रहा है ये एंथर है, ये फिलामेंट है, दोनों को मिला के हम बुलाते हैं स्टैमेन. ये आपने 10वीं में भी पढ़ा है और ये मैंने वीडियो में भी किया है, लास्ट थर्ड वाले वीडियो में. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो बीच की हरी डंडी दिख रही है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. रिकलेक्टिंग दीज वर्ड्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. सही है. तो जो मेल गैमीट्स होते हैं, जो मेल सेल्स होते हैं, वो स्टैमिन एंथर बनाता है, दैट इज द एंड्रोशियम. और गाइनोशियम क्या बनाता है? एग्स. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये दिस इज द ओवरी. इसके अंदर ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं ना, ये अंडे हैं. इसके अंडे मीन्स एग्स, ओव्यूल्स. एंड द बिगर अंडा इज द ओवरी एंड छोटे छोटे अंडे इज द एग्स और द ओव्यूल. ठीक है. ये क्या है? सीपल्स. I will show you a better diagram. इसमें तो लेबल नहीं है, मैं रिवाइज कर लेते हैं फिर आप अटेम्प्ट करोगे. Let me just open. I will just go away with the textbook. आपको स्टूडेंट रिसोर्सेज में ही जाते हैं.
बाय द वे असाइनमेंट में आप लोगों को सबमिट करना रहेगा, हाँ, तो आप लोगों को ये सब लिखना है, ये सब नोटबुक बनानी है और सब लिखना है नोटबुक में। हाँ देखो ये रहा, दिख रहा है ये, मैं और बड़ा करूँ क्या? ठीक है, क्या भी सही है ना? So this is the stigma, this is the style, and this is the ovary. Ovary के अंदर है ovules. This whole thing, another name is carpel और gynoecium भी बुलाते हैं, carpel भी बुलाते हैं, इसको pistil भी बुलाते हैं, pistil. But ये at a later stage I will tell you pistil और carpel क्या है, okay? मतलब difference क्या है दोनों में, अभी नहीं. So style, stigma, ovary, this whole part is the female reproductive part. This anther and the dundee, the stalk, the filament, anther, filament, मिला के क्या है? Stamen. Stamen is your male reproductive part, that is androecium. Male, female, ये petals, attraction के लिए colorful petals होते हैं flowers में, और ये हरी जो पत्ती होती है इसको हम बुलाते हैं, support के लिए है basically sepal. वीडियो में मैंने सब फंक्शन बताए हैं, तो यू हैव टू सी द वीडियो, ओके? आई एम जस्ट डूइंग अ रीकैप. और ये नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, इसको बुलाते हैं हम रिसेप्टेकल. नीचे जो दिख रहा है ना, हाँ, दिस इज नोन एज रिसेप्टेकल, दिस बेस पार्ट. दिस डंडी इज नोन एज पेडंकल. यहाँ पे मैंने लेबल नहीं किया है, बट इसको डंडी को क्या बुलाते हैं हम? पेडंकल बुलाते हैं. पेड और अंकल की स्पेलिंग UNCLE, peduncle. Okay, clear? So this is the part of the different parts of the flower. Anther will produce the male gamete, that is the pollen grains. पोलन ग्रेन्स आपको पता होगा, जो ऐसे बारीक 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 होते हैं. हिबिस्कस फ्लावर में, शू फ्लावर में बहुत ही बाहर की तरफ होता है, तो आपको आसानी से दिखेगा. येलो येलो कलर का ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है. हाँ या ना? एनी आइडिया? ऐसा कोई है जिसको पोलन क्या है कुछ समझ में नहीं, मतलब कभी आइडिया ही नहीं है पोलन ग्रेन्स के बारे में? कितने लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है? जब फूलों का मौसम आता है तो कितने लोगों को वो टाइम पे छींक वगैरह और एलर्जी भी होने लगती है, बिकॉज वो पोलन्स हवा में उड़ते हैं, तो फिर वो जब इनहेल करते हैं कुछ लोग, तो उनको छींके और जुकाम वगैरह हो जाता है. तो काफी पोलन की वजह से लोगों को एलर्जी भी होती है. कुछ लोग कोई फूल वगैरह भी सूंघते हैं तो उनको छींके आती है, तो इट ऑल्सो एक्ट एज एन एलर्जन. Okay, but this is the male gamete. और फीमेल गैमीट क्या है? यहाँ पर अंदर इसके ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर. ओके, तो ये पोलन यहाँ से आके यहाँ पे बैठता है, स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है, इसलिए इसका नाम है स्टिग्मा. तो ये स्टिक होता है, फिर यहाँ पे पूरा ट्रैवल उसका जर्नी है, फिर ट्रैवल करते करते ये एग को आके फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, एंड देन द होल प्रोसेस that we will see as and when you move forward. So any more doubts you have? So giving you the link again. Come the link. Now all of you will go to the link and start solving. तो मुझे मार्क्स देने हैं अभी के अभी. All of you can see the link in the chat box. मैं अभी इसको stop share करूँगी ताकि आप कॉपी ना कर सकें. Come on, you have next 10 minutes to do this. All of you, come on, start.
time has started now. चालू बात कौन से अभी मैं देने चलिए पढ़ाई करते करते खाना नहीं हो रहा है मेरा। और किसी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसका लिंक नहीं खुल रहा है? श्रेया ट्राई वन मोर टाइम ना, एक दो बार और ट्राई करो, शायद खुल जाए। लिंक को पेस्ट कॉपी करो और गूगल ब्राउजर में जाके अरे वाह, आसिफ का हो भी गया। मैं व्हाट्सएप पे दूं क्या? दीदी रोल नंबर, हाँ, रोल नंबर। रोल नंबर नहीं तो मत डालो ना, अभी मिला नहीं होगा ना आप लोगों को, मत डालो। हाँ, एक बार जरा ट्राई, आई मीन हाँ चलेगा साक्षी। आप दूसरी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक। दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, पहली बार है, कोई बात नहीं है। रॉन्ग गलतियों से ही हम सीखेंगे, एक बार में राइट आ जाएगा तो शायद दूसरी बार हमें चीजें याद भी ना रहे, बट एक बार रॉन्ग आके फिर राइट आता है तो याद रहता है काफी टाइम तक का। दीदी मैडम। क्या बोला आपने अमन? डन। डन, ओके, विल वेट फॉर थोड़ा 2-4 मिनट और, सबका हो जाएगा तो। लेकिन अभी डिस्कस करके, हाँ मुझे और एक फॉर्म आपको देना है, तो आई थिंक वो फॉर्म हम कर लेंगे, फिर वी विल एंड द क्लास, बिकॉज डिस्कशन से, क्योंकि आंसर्स तो आपको पता ही अभी हमने डिस्कस किया है। तो जिनका हो गया है जस्ट वेट, आई एम गिविंग आउट वन मोर फीडबैक फॉर्म, वो सबको भरना है अभी क्लास में, एंड देन वी विल एंड द क्लास। ओके, so do we have to do the meeting? No Shreya, wait, just give me a minute.
एक मिनट, हाँ मैं बस दे रही हूँ एक फॉर्म। ये आप फॉर्म अभी मुझे भर के सबमिट कर दो अपना रिस्पॉन्स। ओके let me know if you can see the message and is it opening or not. Take 5 more minutes to do this and then we will end the class. Okay. Okay, I got 9 responses. Good. For the flower wala thing. ऐसा कौन है जो नहीं किया? क्योंकि 13 लोग थे ना, 12 लोग थे, 9 10 11 12, 3 जन ने नहीं किया है। विष्णु, शिफा, श्रेया पाठक, अजित अमन ने किया, श्रेया पाटिल, साक्षी ने किया। Who is Pantycon Lamb और राम देवरी, ये क्या, किसका मेल आईडी भाई? शिफा, साक्षी, श्रेया, कुसुम। ओके, कुसुम है, श्रेया है, आसिफ है। अंडरस्टूड। ठीक है दीदी, मैंने 2 टाइम्स करा, सेकंड। ओके ओके, हाँ हाईएस्ट वाला ही लूंगी, डोंट वरी। कम ऑन, फिल आउट द। हाँ ये असाइनमेंट में तो सब आंसर राइट 1-1 दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहा है? ये जो आपने अभी लिंक भेजा फीडबैक वाला। हाँ अच्छा, आंसर, ओ माय गॉड इसमें आंसर की नहीं होनी चाहिए। इसके वर्ड में दिखा रहे हैं। आप स्कोर मत, फॉरगेट अबाउट स्कोर्स। हाँ, इसमें स्कोर नहीं है, मैंने एक्चुअली उसका कॉपी बना लिया ना, इसलिए तो मैं 0 स्कोर्स डाल रही हूँ सब में। हाँ, अभी मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। हाँ, अभी आएगा आपको, आप कर लो अपना। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग चेंज कर दी है, तो डोंट वरी। एक्चुअली मैंने एग्जिट हो गया है, तो आप बंद कर सकते हो रिस्पॉन्स। एंड वी विल स्टॉप द मीटिंग इन नेक्स्ट 2 minutes। ठीक है? Okay, thank you, teacher. Can I leave? हाँ ओके ओके ओके, चलो। बाय मिस। Those who are done, Bye, teacher. okay, bye, take care. Next time videos करके आना, हाँ, because फिर Yes, Didi. क्या? चलो, bye all of you, take care. Bye, Didi. Don't forget to fill the feedback form and exit quiz का वो marks मुझे enter करना है अभी sheet में। हाँ, तो जिन्होंने नहीं किया वो कर देना। हो गया, चलो। Okay, I'm ending the meeting. Bye all of you. हाँ विष्णु, बट किसी को और कुछ डाउट्स नहीं है? हमने पूरा 1 घंटे से सारा डिस्कशन कर लिया है। So now I will give you the remaining recordings for the next week, and then वो recording देखने के बाद हम discussion और doubts वगैरह करेंगे the next live class. Now we don't have anything to discuss ना, और जो भी मैंने recordings दिया था उसके ऊपर the important part जो मुझे assess करना था आप लोगों को, that was the part of the flower. So that's why. Okay, so take care, see you in the next class.